Hello students, in last lecture we have studied about the test cross and independent assortment. मतलब कि there are two laws, law of dominant, then law of segregation, okay, and difference between dominance, codominance and incomplete dominance. Okay, now today we start the next topic, dihybrid experiments. Okay, इससे पहले मैंने आपको मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में पढ़ाया था. Means what is monohybrid and why it's known as monohybrid experiment. Monohybrid means mono is equal to 1. Mendel observed only one characteristics at one time in particular seed or particular pea plant. मतलब कि उसको मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्यों कहा गया था? क्योंकि मेंडल ने मोनो मीन्स एक सिंगल कैरेक्टर को ही ऑब्जर्व किया था इस एक्सपेरिमेंट में. उसकी वजह से उसको मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. कौन सा एक्सपेरिमेंट? मोनो. ओके, वो हमने पढ़ा. तो मोनोहाइब्रिड में जनरली हमने क्या कैरेक्टर है उसको कंसीडर किया था? तो हाइट ऑफ द स्टेम, either it is dwarf or it is tall. Means we choose two plant, one is tall and another is dwarf, and there is crossing between this tall plant and dwarf plant. Means only one character is observed. Then which character? The character is height of the stem. Okay, मतलब कि एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना उसको मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. नाउ व्हाट इज डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट? सेम वे एज द नेम सजेस्ट, डाई इज इक्वल टू 2. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल crossed pea plant or seeds of this pea plant, but not only for one character at one time. In this experiment, Mendel consider two characteristics at one time. मतलब कि एक टाइम में उसने दो कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया. उसकी वजह से इसको डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. मेंडल ऑब्जर्व two characters at one time. Okay, he collected the seeds having two different characters at one time, or he observed the type of seeds having two different characteristics at one time. मतलब कि एक ही टाइम में उसने पी प्लांट के जो सीड्स थे उसके टू कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया. Then which two characters are there? The first character is color of seed and second character is shape of seed. Clear? He observed two characteristics at one time. Which two characteristics? First is color of seed and second is shape of seeds. Okay, means मोनोहाइब्रिड में
Generally he observed only height of stem at one time. But in case of dihybrid experiment, he observed two characters at one time. Which two characters? The first one is color of seed and the second one is shape of seeds. Clear? मतलब कि उसने एक ही टाइम पे टू कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया. ओके, उसकी वजह से इसको डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. क्लियर? एंड विच कैरेक्टर्स आर देयर? फर्स्ट कैरेक्टर इज कलर ऑफ सीड and the another character is shape of seed. Okay? Now let's start the experiment. Remember that in monohybrid one character at one time and in dihybrid two characters at one time. क्लियर? मोनो में एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया है पर्टिकुलर टाइम में. बट इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स एट वन टाइम. ओके, पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम है. मतलब कि अगर एक ईयर में उसको पूरा जो कैलकुलेशन करना है कि पेरेंट के बीच में क्रॉसिंग करवाया तो F1 प्रोजेनी कैसी है और F2 प्रोजेनी कैसी है. F1 का सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसमें से F2 प्रोजेनी कैसी है. तो मतलब उसका जो पर्टिकुलर गिवन पीरियड होता है कि सपोज कि कोई कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने के लिए उसने 1 ईयर का पीरियड कंसीडर किया हुआ है. ओके, तो उसने 1 ईयर में एक ही साथ टू कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किए. ओके, इसकी वजह से उसको डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. नेम से ही पता चलेगा कि जब एक साथ दो कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया जाए सो उसको डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. एंड एक ही टाइम पे ओनली सिंगल कैरेक्टर को ही ऑब्जर्व किया जाता है देन उसको मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट? ओके, in case of dihybrid experiment, Mendel crossed pea plant seeds having the first character is color of seeds. He selected the yellow color and green color seeds. Okay. And second is the shape of seeds. Round shape and wrinkled. Okay, round and wrinkled. Clear? Now in case of color of seeds, the yellow color is dominant over the green color. Means in case of color of seeds, मतलब कि जैसे टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉसिंग हुआ था तो हमने मतलब एक ही कैरेक्टर था तो हमें पता है कि टॉल इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फ इज रिसेसिव. ओके, टॉल इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ. सेम वे इन केस ऑफ यहाँ दो कैरेक्टर है तो दोनों में ऐसा ही होगा. ये दोनों में से एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव. सेम वे ये दोनों में से एक डोमिनेंट एंड दूसरा रिसेसिव. क्लियर? ओके, तो इन केस ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर्स कलर ऑफ सेट्स द येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन कलर. क्लियर? एंड द शेप ऑफ सेट्स the round color is dominant over the wrinkled. Clear? मतलब कि येलो जो है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है. मतलब येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव. सेम वे राउंड इज डोमिनेंट ओवर द wrinkled means round is dominant and wrinkled is recessive. Clear? Okay. Now
एज अ पेरेंट, उससे पहले मैं आपको सिंबल के बारे में बता दूं कि उसने क्या सिंबल लिए थे कि फॉर द येलो कलर द सिंबल इज कैपिटल Y एंड फॉर द ग्रीन कलर द सिंबल इज स्मॉल y. Means the yellow color is dominant and green color is recessive. Same way, round shape, capital R and wrinkled, small r. Clear? Okay. Now, capital R means round is dominant over wrinkled, means wrinkled is recessive. Okay? Now, he मतलब कि मेंडल सिलेक्टेड टू कैरेक्टर्स क्रॉसिंग एट वन टाइम. मतलब कि उसने कैसे सिड को पसंद किया है कि जिसका शेप राउंड है एंड कलर येलो है, उसका क्रॉसिंग उसने कैसे सिड के साथ करवाया है कि जो रिंकल्ड है एंड कलर उसका ग्रीन है. जैसे हमने क्या किया था मोनोहाइब्रिड में, कैपिटल टी एज अ पेरेंट, कैपिटल टी क्रॉसिंग विथ स्मॉल टी means here the capital T is dominant, okay, and small t is recessive. Same way in case of dihybrid क्या लिखोगे आप, डोमिनेंट क्रॉस विथ रिसेसिव. लेकिन यहाँ तो एक ही कैरेक्टर था, उसकी वजह से हमने ये सिंगल डोमिनेंट लिया हुआ है, लेकिन यहाँ एक साथ 2 कैरेक्टर्स है. ओके, सो एज अ पेरेंट Mendel crossed the sets of round shape and yellow colored crossed with wrinkled and green color. Clear? Dominant, crossed, recessive. Clear? But what is the difference in case of monohybrid and dihybrid? In monohybrid, only one characteristic. So we consider only one character. So capital T only. And in case of recessive, small t only. Okay. But in case of this dihybrid, consider 2 characteristics at one time. So the sets having round shape and yellow colored means dominant, crossed with sets having wrinkled shape and green colored, that is recessive. Clear? Dominant crossed with recessive. Okay. Now in this case देखो, वैसे सिंप्लीफाई अगर आप देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि जैसे हम ऐसा लिखते थे कि कैपिटल टी है, तो वो कौन से टाइप के गैमेट्स फॉर्म करेगा. तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, टी. ओके, क्योंकि वो सेम ही है. तो यहाँ अगर हम देखें तो देखो क्या लिख सकते हो कि अगर ये जो कैपिटल R है वो Y मतलब Y, उसके कौन से टाइप के गैमेट्स हो सकते हैं. गैमेट्स पर्टिकुलरली आप देखो R एंड Y टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है तो कौन सी पॉसिबिलिटी है. ये जो कैपिटल R है और ये Y उसका एक गैमेट, या फिर ये कैपिटल R जो है वो ये Y के साथ, तो RY. सेम वे this capital R with Y, RY, and this capital R with this Y, RY. Clear? That means the gametes are of which type? RY type. वैसे आप
नहीं भी करो तो हमें पता चल ही जाएगा कि उसमें सारे, जैसे हम ऐसे में लिख सकते हैं कि कैपिटल टी है, उसमें सारे गैमेट्स कौन से टाइप के हैं, टी टाइप के। ओके, स्मॉल टी है तो उसमें सारे गैमेट्स कौन से टाइप के हैं, स्मॉल टी टाइप के। तो यहाँ भी हमें पता चल ही जाएगा कि कैपिटल आर तो उसमें कौन सा आर, कैपिटल वाई तो कौन सा वाई। दैट मीन्स कि उसमें सारे जो गैमेट्स है वो कौन से टाइप के होंगे, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। ओके, same way in case of small r and small y, what happen here, small y same like this, small r small y, this small r small y and again this small r small y। कहने का मतलब क्या है कि एक ही टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। किसी का भी दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं, सपोज कि ये मदर है और ये फादर है, ओके, तो दोनों का क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्रॉसिंग में आप कोई भी इसका इसके साथ हो सकता है या फिर इसका कोई किसी का भी किसी के साथ क्रॉसिंग करवा लो, हमें सारे रिजल्ट कैसे मिलेंगे। इन केस ऑफ F1 जनरेशन कैपिटल R, सपोज ये है और ये जो है उसका फ्यूजन इसके साथ होता है, तो कैपिटल R स्मॉल y जो है उसका फ्यूजन करवाएंगे स्मॉल y के साथ। क्या लिखोगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। क्लियर। सपोज इसका इसके साथ करवाओगे, सेम वे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, मतलब किसी का भी फ्यूजन होगा हमें F1 प्रोजेनी एक ही टाइप की मिलेगी, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इन केस मतलब किसके जैसा है ये, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ था उसमें, देखो हमें कैपिटल टी लिया था, इसमें स्मॉल टी लिया था। ओके, यहाँ क्या था, कैपिटल टी टाइप के थे सारे, यहाँ कौन से टाइप के थे, स्मॉल टी के टाइप के थे। अब किसी के भी साथ उसका क्रॉसिंग करवाओ, हमें F1 प्रोजेनी कौन से टाइप की मिल सकती है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर। तो सेम वे इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपन, in case of F1 progeny all the results will be same, capital R capital Y small y। क्लियर। मतलब कि F1 में हमें जो प्रोजेनी मिलेगी सबका जीनोटाइप कौन सा है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ओके, ये था जीनोटाइप उसका। तो सेम वे जैसे ये एक्सपेरिमेंट में हमें F1 प्रोजेनी मिली थी जिसमें कैपिटल T स्मॉल t था, ओके, तो हमने उसका फिनोटाइप क्या लिखा था, सबको याद होना चाहिए। तो हमें इसका फिनोटाइप किसके हिसाब से लिखा था, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपिटल T। व्हाई, बिकॉज कैपिटल T इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल t। मतलब कि ये जो कैपिटल T है वो स्मॉल t के ऊपर डोमिनेंट है। ओके, तो जो कैपिटल T डोमिनेंट है उसकी वजह से सारे प्लांट F1 प्रोजेनी में हमें कैसे मिले थे, टॉल। Why all the plants are tall? Because of this reason capital T is completely dominant over the small t। तो कैपिटल जब तक डोमिनेंट जीन है तब तक रिसेसिव की असर जो है उसकी जो इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिलती है, और उसकी वजह से हमें F1 में सारे प्लांट्स मोनोहाइब्रिड में कैसे मिले थे, फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में टॉल प्लांट। ओके, तो सेम वे इन केस ऑफ दिस F1 में हमें सारे प्लांट्स कैसे मिले, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ओके, here capital R is dominant and small r is recessive। तो किसका कैरेक्टर ऑब्जर्व होगा, नॉट स्मॉल r, कैपिटल R का ही होगा। व्हाई, बिकॉज कैपिटल R is completely dominant over the small r। तो F1 में कैपिटल R का कैरेक्टर है राउंड शेप, एंड यहाँ दोनों में भी सेम वे कैपिटल Y एंड स्मॉल y है। तो कौन डोमिनेंट है, कैपिटल Y, किसके ऊपर, स्मॉल y के ऊपर। ओके, तो राउंड एंड कैपिटल Y दैट मीन्स येलो। तो इन F1 प्रोजेनी all the seeds are round shaped and yellow colored। जैसे
मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स जो है उसका जीनोटाइप हमें मिला था कैपिटल T स्मॉल t एंड सबका फिनोटाइप था टॉल प्लांट्स. व्हाई टॉल? बिकॉज ऑफ द कैपिटल T इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल t. In case of dihybrid experiment, the crossing between the round shape and yellow colored seeds with wrinkled shape and green colored seed, then in F1 progeny, all the plants or all the seeds having genotype capital R small r, capital Y small y, and having phenotype round and yellow. Why round and yellow? Round and yellow because capital R is completely dominant over the small r and capital Y is completely dominant over the small y. मतलब कि ये जब तक डोमिनेंट है इफेक्ट किसकी आएगी? डोमिनेंट की. ओके, तो इसकी वजह से F1 जो प्रोजेनी है उसमें हमें क्या मिला? सारे जो है वो राउंड एंड येलो कलर के सेट्स मिले. ओके, नाउ सेम वे सेल्फ फर्टिलाइजेशन बिटवीन दिस F1 प्रोजेनी. तो अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें तो क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. सेल्फ मतलब सेम, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. ओके, जैसे हमने मोनो में क्या किया था सेल्फ फर्टिलाइजेशन में, याद है? कैपिटल T स्मॉल t जो हमें F1 में मिला था उसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा ऐसे किया था कैपिटल T स्मॉल t. सेम वे यहाँ टू कैरेक्टर्स है तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y जो F1 में मिला उसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया तो सेम उसके ही साथ. क्लियर? ओके, नाउ व्हाट हैपन? यहाँ हम लिखेंगे फीमेल गैमेट्स. कौन कौन से फीमेल गैमेट्स? सपोज ये फीमेल है और ये मेल है. ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे मेल गैमेट्स. कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? चलो ध्यान से परफेक्टली देखना. देखो कौन कौन से गैमेट्स फॉर्म हो सकते हैं. या तो ये कैपिटल R जो है वो कैपिटल Y के साथ फ्यूज होगा, दैट इज द फर्स्ट गैमेट कैपिटल R कैपिटल Y. ओके, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आइदर ये कैपिटल R ये स्मॉल y के साथ. तो दूसरा हम लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल y. ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी या तो फिर ये स्मॉल r है वो स्मॉल y के साथ फ्यूज होके स्मॉल r एंड कैपिटल Y जैसा गैमेट्स बना सकता है, या फिर ये स्मॉल r जो है वो स्मॉल y के साथ फ्यूज होगा. क्लियर? Why? Because in case of capital R small r both are in same proportion 50-50%. Capital R also 50%, small r 50%. Same way in case of capital Y small y 50%, capital Y 50% small y. तो इस जो कैपिटल R है उसकी 50% चांसेस होता है कि वो कैपिटल Y के साथ फ्यूज हो सकता है या फिर वो स्मॉल y के साथ गैमेट बनाने के लिए. सेम वे ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल Y के साथ या फिर स्मॉल y के साथ. तो ये चार पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ इसमें से हमें ये 4 टाइप के गैमेट्स मिल सकते हैं. देखो मैं आपको इजीली डिस्क्राइब करूँ. जैसे कि हमने ये लिया था कि कैपिटल T स्मॉल t, ये सिंपल. तो यहाँ कौन कौन से टाइप के गैमेट्स मिल सकते हैं? तो वन इज कैपिटल टाइप T एंड अनदर इज स्मॉल t. ओके, सपोज कि ये फीमेल है तो फीमेल में हमने लिखा था ना ये कैपिटल T एंड स्मॉल t. जैसे कि मैं ये टेबल के फॉर्म में अगर लिख दूँ कि यहाँ हमें फीमेल गैमेट्स लिखने हैं तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? कौन से मिल सकते? या फिर कैपिटल T या फिर स्मॉल t. क्लियर? सेम वे यहाँ मेल गैमेट्स तो सेम, या फिर वो कैपिटल T या फिर स्मॉल t. क्लियर? और फिर यहाँ दोनों के बीच में
मेल फीमेल का क्रॉसिंग करवाया था। समझ में आ रहा है? और ये क्रॉसिंग करवाया जो प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू हमने पढ़ा था। यहाँ भी सेम वही गैमेट्स लिखे, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? यहाँ एक साथ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ ओनली सिंगल था। समझ में आया? लिखा तो मैंने वही है। तो ये हुए फीमेल के गैमेट्स। सेम पॉसिबिलिटी है ये मेल के पास, या फिर ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई के साथ, या फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। 2 ऑप्शंस। वैसे स्मॉल आर के पास भी 2 ऑप्शन है, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ फ्यूज हो सकता है, या फिर ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। क्लियर? ओके। तो ये वाले जो मिले वो फीमेल गैमेट्स और ये वाले जो मिले हैं वो मेल गैमेट्स। ओके। तो F2 प्रोजेनी में हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे किसके थ्रू? द क्रॉस बिटवीन फीमेल एंड मेल गैमेट्स। और ये जो सारे रिजल्ट मिले वो कौन सी? F2 जनरेशन मिलेगी। समझ में आया? चलो, तो F2 में हमें 16 रिजल्ट्स मिलेंगे। कितने? 16। चलो ध्यान से देखो, ये फीमेल ये मेल, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, क्रॉसिंग हुआ ना इसका इसके साथ। सेम वे इसका इसके साथ, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ओके। नेक्स्ट, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? सेम वे इसका इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ओके। नाउ ये तीसरा, इसका इसके साथ एस पॉसिबल पहले कैपिटल ही लिखो, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पहले स्मॉल आर लिखना पड़ेगा। कैपिटल इसकी वजह से कि आपको इजी समझ में आए कि ये डोमिनेंट है फर्स्ट लेटर, उसकी वजह से। ओके। कैपिटल आर स्मॉल आर बोथ आर कैपिटल, देन कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके। देन आफ्टर स्मॉल आर and capital Y capital Y. Okay. Next, small r capital Y small y. Clear? Now next, capital R small r and capital Y small y. Next, capital R small y small y. Then after small r capital Y small y, and last one small r and small y small y. Okay. There are 16 results of F2 generation. मतलब कि हमें ये 16 जीनोटाइप मिले. ये 16 जीनोटाइप्स है कि इतने डिफरेंट प्रोजेनी हमें मिली. ओके. अब हम उसके हिसाब से उसका फेनोटाइप लिखेंगे. क्लियर? जैसे हमने इसमें लिखा था ना कि कैपिटल टी दैट इज जीनोटाइप, बट बोथ आर डोमिनेंट, सो उसका फेनोटाइप कौन सा था? टॉल. क्लियर? फिर दूसरा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव. तो उसमें क्या होगा?
कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। ओके, तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, उसकी वजह से फिनोटाइप क्या लिखेंगे, डोमिनेंट वाला, दैट इज टॉल। ओके, और स्मॉल टी बोथ आर रिसेसिव, मतलब कि कौन सा प्लांट हो गया, ड्वार्फ। क्लियर? तो उसके हिसाब से इसमें भी सेम वैसे ही देखना है। देखो यहाँ ध्यान से, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, मतलब बोथ आर डोमिनेंट, देन द सीड्स इज राउंड शेप एंड येलो कलर। ओके, राउंड एंड येलो मिला, समझ में आया? बोथ आर डोमिनेंट, उसकी वजह से कैसा मिलेगा वो, राउंड एंड येलो। क्लियर? चलो यहाँ कैपिटल आर, तो दोनों कैपिटल आर, दैट मीन्स के बोथ आर डोमिनेंट, दैट इज राउंड शेप। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, वन इज डोमिनेंट, अदर इज रिसेसिव। तो डोमिनेंट है उसका कैरेक्टर दिखेगा, तो डोमिनेंट कैपिटल वाई है, तो क्या लिखेंगे हम, येलो। ओके, चलो सेम वे हियर इज कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो कैपिटल आर इज डोमिनेंट एंड स्मॉल आर इज रिसेसिव। क्लियर? तो हियर कैपिटल आर इज डोमिनेंट, तो उसकी वजह से उसका कैरेक्टर लिखेंगे हम राउंड शेप, एंड बोथ आर कैपिटल वाई, तो दोनों जो है वो कैपिटल वाई। ओके, तो उसका फिनोटाइप क्या लिखेंगे हम, येलो। सेम वे कैपिटल आर, कैपिटल आर डोमिनेंट, स्मॉल आर रिसेसिव। किसका कैरेक्टर लिखना है, डोमिनेंट, तो कैपिटल आर का क्या लिखेंगे, राउंड, एंड कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दैट इज येलो। क्लियर? चलो यहाँ कैपिटल आर, मतलब कि राउंड, हियर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, मतलब कि कैपिटल वाई इज डोमिनेंट एंड स्मॉल वाई इज रिसेसिव। क्लियर? तो कैपिटल वाई डोमिनेंट है, उसकी वजह से येलो। क्लियर? ओके, कैपिटल आर, दैट मीन्स बोथ आर कैपिटल, राउंड, एंड स्मॉल वाई, उसका मतलब दोनों रिसेसिव है, यहाँ एक भी डोमिनेंट नहीं है, बोथ आर स्मॉल वाई। क्लियर? अगर दोनों स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन कलर के लिए, तो दोनों एक भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों रिसेसिव है, तो यहाँ कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर। ओके, ना कैपिटल आर, स्मॉल आर, मतलब कि कैपिटल आर डोमिनेंट है एंड स्मॉल आर रिसेसिव है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, राउंड शेप, एंड वन इज कैपिटल वाई, अनदर इज स्मॉल वाई, मतलब कैपिटल वाई इज डोमिनेंट, सो येलो। क्लियर? चलो यहाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर इज डोमिनेंट। ओके, तो कैपिटल आर डोमिनेंट है, इसकी वजह से हम लिखेंगे यहाँ राउंड, एंड स्मॉल वाई मीन्स बोथ आर रिसेसिव, तो कौन सा कैरेक्टर दिखेगा हमें, रिसेसिव वाला, बिकॉज कि बोथ आर रिसेसिव। ओके, तो हियर ग्रीन। नाउ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, मतलब कि वन इज डोमिनेंट, कैपिटल आर इज डोमिनेंट, तो कैरेक्टर इज राउंड शेप, एंड capital Y, that means both are dominant, so obviously yellow colored. Now one dominant capital R and one recessive small r, मतलब किसका phenotype दिखेगा, capital R का, that is round, capital Y small y, capital Y का yellow. Okay, now small r sure, both are recessive, that means कोई भी कैपिटल आर नहीं है, दोनों स्मॉल आर है, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर हुए। ओके, तो वो कौन सा शेप देंगे, रिंग कलर। ओके, और यहाँ बोथ आर कैपिटल वाई, मतलब बोथ आर डोमिनेंट,
देन द येलो कलर। क्लियर? सेम वे यहां देखो, बोथ आर रिसेसिव, स्मॉल आर स्मॉलर देन wrinkled एंड कैपिटल Y स्मॉल y, मतलब कि कैपिटल Y इज डोमिनेंट, सो येलो। यहां कैपिटल R स्मॉल r, दैट मीन्स राउंड। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको। यहां एक कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, सो येलो। चलो यहां कैपिटल R स्मॉल r, दैट इज राउंड। बोथ आर स्मॉल y, मतलब कि बोथ आर रिसेसिव, मतलब कि ग्रीन। ओके, चलो स्मॉल आर स्मॉल r, बोथ आर रिसेसिव, दैट इज wrinkled एंड कैपिटल Y स्मॉल y, वन इज कैपिटल Y, मतलब वन इज डोमिनेंट, तो क्या लिखोगे आप? येलो। क्लियर? नेक्स्ट, स्मॉल r स्मॉल r, both are recessive, so wrinkled and small y same way both are recessive, that is green। ओके, तो ये हमने उसके जीनोटाइप के बेस से उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर लिखे। समझ में आया? अब ध्यान से देखना कि जैसे मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में हमने पर्टिकुलर जीनोटाइपिक रेशियो फाइंड आउट किया था एंड फिनोटाइपिक। मैं पहले वो आपको रिपीट करवाती हूँ, ध्यान से देखना। हमने यहाँ F2 जनरेशन में क्या मिला था? कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t एंड स्मॉल t, स्मॉल t, ये हमें मिला था इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड। ओके, इसके हिसाब से हमने उसके टू टाइप के रेशियो लिखे थे। तो फर्स्ट इज जीनोटाइपिक रेशियो एंड अनदर इज फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, जीनोटाइपिक रेशियो किसके बेस पे लिखा था? अकॉर्डिंग टू इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, means capital T only one, that is 1, capital T small t 1 and 2, that is 2, small t 1, that is 1, that is the genotypic ratio। Clear? What is phenotypic? On the base of their observable characteristics which we can see through our naked eyes, मतलब कि उसके जो कैरेक्टर्स है जो हम अपनी आईज के थ्रू डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके हिसाब से हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि दैट इज टॉल, ऑल्सो टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल एंड दैट इज ड्वार्फ। ओके, तो हियर द फेनोटाइपिक रेशियो इज 1 2 3, 3 आर टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ, दैट इज 3:1। ये हमने फाइंड आउट किया था। क्लियर? और F1 जनरेशन में तो हमें सारे एक ही टाइप के मिले थे, मतलब कि 100% सेम टाइप के, कैपिटल T स्मॉल t। तो वो तो हमें यहाँ भी ऐसा कंप्लीटली मिला कि 100% कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। अब हम F2 प्रोजेनी के बेसिस से पहले फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। चलो मैं आपको पहले एक सिंपल ट्रिक दिखाती हूँ कि फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड में था 3:1, मतलब कि 3 है वो कैसे है, किसके कैरेक्टरिस्टिक है? 3 डोमिनेंट है, टॉल टॉल टॉल। ओके, तो 3 जो है वो डोमिनेंट है एंड जो 1 था वो रिसेसिव था। ओके, ये एक ही कैरेक्टर्स थे क्योंकि मोनोहाइब्रिड था। अब हम यहाँ डाइहाइब्रिड के लिए देखते हैं। फॉर डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, चलो पहले हम फिनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे। चलो पहले आप यहां से बोलो फिनोटाइपिक कितने राउंड एंड येलो है। पहला हम लिखेंगे राउंड एंड येलो। ओके,
राउंड एंड येलो कलर के कितने सेट्स हैं? राउंड येलो फर्स्ट, राउंड येलो 2, राउंड येलो 3, राउंड येलो 4, राउंड येलो 5, ये राउंड ग्रीन है, देन राउंड येलो 6, ये भी राउंड ग्रीन है, राउंड येलो 7, राउंड येलो 8, ये रिंकल्ड है, ये रिंकल्ड है, एंड दिस वन राउंड येलो 9, ये राउंड ग्रीन है, ये रिंकल येलो, ये रिंकल ग्रीन है। मतलब कि राउंड एंड येलो कलर के कितने सेट्स मिले हमें? 9। फिर राउंड एंड रिंकल्ड, जो राउंड है लेकिन रिंकल्ड, जो ये तो सारे आ गए, यहाँ राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन है, राउंड एंड रिंकल्ड। देखो सॉरी नॉट राउंड रिंकल्ड, वो तो सेम ही हो गए, राउंड एंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ये है राउंड एंड ग्रीन फर्स्ट, ये राउंड ग्रीन सेकेंड, इसमें ये दोनों रिंकल्ड है, ये वाला राउंड ग्रीन थर्ड, ये रिंकल्ड है। ओके, तो राउंड एंड ग्रीन वाले मिले हमें 3। चलो अब आगे राउंड येलो आ गए, राउंड ग्रीन भी आ गए, अब रिंकल्ड की बात, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, बराबर। wrinkled yellow, wrinkled yellow, that is 1, wrinkled yellow 2, and here wrinkled yellow 3, ये wrinkled green, then wrinkled yellow is 3 and last one is 2, एक ही remaining है wrinkled green, that is 1. Okay, तो in case of dihybrid experiment the phenotypic ratio is 9:3:3:1. समझ में आया? फिनोटाइपिक रेशियो है ये, हमने किसके हिसाब से रेशियो बनाया? उसके कैरेक्टर पे, कि राउंड येलो किस मतलब कितने हैं, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, फिर रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं। तो मतलब ये हमने किसके बेस पे बनाया? उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के हिसाब से। ओके, तो दैट इज द फिनोटाइपिक रेशियो। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, ध्यान से देखो, जैसे हमें मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में पता है कि जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1, जिसमें 3 डोमिनेंट है एंड 1 रिसेसिव है। ओके, तो यहाँ कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? 2। चलो, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि 3:1 और दूसरा भी है 3:1, वाई मैंने 2 टाइम्स लिखा? बिकॉज वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक है फॉर द शेप और ये मिला हमें फॉर द कलर। मतलब कि 3 डोमिनेंट है। अगर शेप के अकॉर्डिंग लिखना है तो 3 डोमिनेंट, मतलब 3 कौन से हो गए? राउंड, and 1 is wrinkled. Why? Because here there are 2 characters. अगर दूसरे कैरेक्टर के बारे में लिखना है, 3 dominant, 1 recessive. 3 dominant, that is 3 yellow and 1 is green. लिख सकते हो ऐसा? वहां हमने 3:1 लिखा था, 3 tall 1 dwarf. क्लियर? यहाँ क्या है? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे ना, दोनों के लिए लिखेंगे 3:1, 3:1, 3:1 फॉर शेप। तो अगर 3 डोमिनेंट है तो राउंड 3 and 1 wrinkled, और दूसरा लिखना है फॉर द कलर 3 येलो 1 ग्रीन। चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ध्यान से देखो, 3 फर्स्ट 3 3 9। चलो 3 के नीचे क्या लिखा है? राउंड, एंड ये 3 के नीचे क्या है? येलो। तो 9 कैसे मिलेंगे? राउंड एंड येलो मिल गए। क्लियर? चलो ये जो 3 है इसका क्रॉसिंग करवाते हैं 1 के साथ, तो क्या मिलेगा? 3 का क्रॉसिंग करवाया अब 1 के साथ,
तो 3 1s are 3, that is 3. 3 के नीचे क्या है? 3 round and here 1 green. Then the 3 types of seeds having round shape and green color. Here round green 3, round green 3. Clear? इसके बाद 1 multiply with this 3, 1 3s are 3. Clear? 1 is wrinkled and 3 is yellow. Then the 3 are wrinkled and yellow. मिले? Wrinkled yellow 3. Clear? Last one. 1 multiply 1. 1 1s are 1. So here 1. Here 1 is wrinkled and 1 green. Clear? Same. The ratio is 9:3:3:1. Obviously हमने जैसे यहाँ से काउंट करके लिखे सेम ही है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. कि मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में बताया है कि F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1, इन विच 3 आर डोमिनेंट एंड 1 इज रिसेसिव. लेकिन इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, सो वी get ratio 2 times, like 3:1 for one character shape and 3:1 for the another character color. Okay, and that is a crossing. Then this is the result. That is the phenotypic result or phenotype 3:3:1. And यहाँ से जो characters मिले उसको भी count करके हम directly लिखेंगे 9:3:3:1. Okay, समझ में आया? That is the dihybrid experiment. ध्यान से एक बार पढ़ना, बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें डिफरेंट मतलब कि कोई टफ कुछ भी नहीं है. यहाँ एक्चुअली है क्या कि देखो सेम टू सेम मोनोहाइब्रिड के जैसा ही है. डिफरेंट कहाँ पे है कि मोनोहाइब्रिड में हमने एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके लिखा है और यहाँ हमने एक साथ 2 कैरेक्टर्स लिए हुए हैं. समझ में आया? उसके हिसाब से. और दिस इज द मोस्ट IMP थियरी विच विल आस्क्ड इन मैक्सिमम एग्जाम्स. क्लियर? तो आपको ये थियरी 5 टाइम्स लिखनी है, ये टेबल खुद बनाना है और उसके हिसाब से आपको ये पूरा जो फिनोटाइप है वो खुद लिखना है. और मैं आपको होमवर्क के बेस पे देती हूँ कि जैसे हमने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में ये तो हमने ओनली फिनोटाइप रेशियो फाइंड आउट किया ना 9:3:3:1. जैसे हमने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में जीनोटाइपिक रेशियो भी फाइंड आउट किया था ना, कैपिटल T वाला 1 दैट इज 1, कैपिटल T स्मॉल t वाले 2 तो 1:2 एंड स्मॉल t वाले 1:1. तो यहाँ जैसे कि कैपिटल R कैपिटल Y वाले कितने हैं वो काउंट करके लिखो, फिर ये वाले कितने हैं वो काउंट करके लिखो और उसके हिसाब से पूरे टेबल के ऊपर से आपको हमें क्या लिखना है कि आपको लिखना है कि उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है. ओके, तो आपको होमवर्क में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के कंपल्सरी बताना है आंसर द जीनोटाइपिक रेशियो इन डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. क्लियर? पक्का? ओके, क्लियर ना? फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ये आंसर मुझे कंपलसरी लिख के देना है कमेंट बॉक्स में कि उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा. नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये जीनोटाइपिक हम काउंट करके लिखेंगे, लेकिन पहले आपको खुद से ट्राई करना है. क्लियर? ओके, थैंक यू.